जब एक बार रिफ्यूजल आती है ना, सबसे ज्यादा नुकसान पेरेंट्स को तो होता ही होता है। जो बच्चे के ऊपर मेंटल स्ट्रेस होता है, उससे बड़ा नुकसान जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। जो बच्चे अपने कनाडा जाने का सपना छोड़ चुके थे कि उनका वीजा लग नहीं सकता, उन बच्चों के मैंने वीजे लिए। रिफ्यूजल केस कोई बहुत बड़ा हुआ मार्केट में जो बना दिया गया ना, वैसा नहीं है। बच्चे को मैंने ज्यादा परेशान भी नहीं होने दिया कि भाई तू कॉलेज चेंज कर, तेरा पैसा खराब हो जाएगा। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਸਕੋ। उस बच्चे की एसओपी में तो सिर्फ ये लिखा था कि जी वीजा दे दो। हम जैसे एम्बेसी ऑफिसर को हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भाई ये 4 बार रिफ्यूज हो गया, वीजा दे दो। बच्चे का 3 दिन में पीटी के ऊपर वीजा आया है। अच्छा जी। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर पीटी पे वीजा आया। हमें 8 से 9 घंटे लगे उसकी एसओपी तैयार करने में कि भाई हम एम्बेसी ऑफिसर कहें क्या कि हमें वीजा दे 5 रिफ्यूजल के बाद। जिसने पीटी की है, पीटी में उसके 54 अबव नंबर है, वो मेरे पास आ जाए कनाडा में अप्लाई करने के लिए। तो मुझे एक बार एम्बेसी और जब तक कॉलेजेस से क्लियर नहीं होता तब तक मैं इस बारे में बच्चे को मिसगाइड नहीं करूंगा कि एक में 5.5 बैंड पे आप अपनी फाइल लगा लीजिए। अप्लाई सिर्फ उस कंपनी से करो जहां पर ऑनर मिले, आपको फर्स्ट डे मिले। जी फर्स्ट टाइम 2021 ਚ ਫਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਵਾਏ, ਚਲੋ 9 ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਓਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੇ, ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀਟੀ ਔਰ ਟੋਫਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਫਲ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 100+ ਵੀਜ਼ੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ? देखो 14 जुलाई 2022 को हमने इसको इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी और आज 14 जुलाई 2023 हो चुकी है और बहुत प्यार मिला सभी दर्शकों से, सभी व्यूअर्स से। जो बच्चा है बहुत प्यार मिला। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास ये 1 साल में मैंने देख लिए जो बच्चे अपने कनाडा जाने का सपना छोड़ चुके थे कि उनका वीजा लग नहीं सकता। उन बच्चों के मैंने वीजे लिए। एक्चुअली खुशी तब मिलती है जब हम कोई काम शुरू कर रहे हो ना और वो बच्चा हमें मिल जाए जो बच्चा हमारे ऊपर डिपेंड हो कि ये बंदा हमारा काम करवा सकता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के वीजे लगे जो कि वीजा आप मेरे पास देख सकते हैं। अभी दिखाएंगे आपको 5 रिफ्यूजल के बाद 3 रिफ्यूजल 2018 पास आउट। पीटी की बात कर रहे थे हम लोग कि पीटी पे वीजा नहीं मिल रहा या 10 अगस्त के बाद चल रही है पीटी पे, तो उस बारे में भी मेरे ख्याल से आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 5 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਔਰ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 21 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਜਾਂ 23 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ? देखो रिफ्यूजल केस कोई बहुत बड़ा हुआ मार्केट में जो बना दिया गया ना, वैसा नहीं है। पहली बात रिफ्यूजल आई किस वजह से, अगर एक कंसल्टेंट वो जान ले बच्चे का वीजा आ जाएगा। 5 बार बच्चा रिफ्यूज्ड हो गया जी, मैंने बच्चे का कॉलेज नहीं चेंज किया, बच्चे ने 5 बार एक ही कॉलेज में फाइल लगाई। मैं एज अ कंसल्टेंट, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, बट मैं पैसे के पीछे नहीं भागता कि बच्चे का कॉलेज चेंज कराऊं, बच्चे की फीस वापस कराऊं, फिर अपनी तरफ से फीस भरवाऊं। इस चीज के पीछे नहीं मैं भागा। उसे कॉलेज ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? बिल्कुल। और
बच्चे को मैंने ज्यादा परेशान भी नहीं होने दिया कि भाई तू कॉलेज चेंज कर, तेरा पैसा खराब हो जाएगा। देखो जो 5 बार बच्चा रिफ्यूज हो चुका है ना, वो ऑलरेडी 2, 2.5, 3 लाख रुपए अपना खराब कर चुका है, ठीक है। और वो मेरे पास किस लिए आया है? वो मेरे पास इसलिए आया है कि मैं उसका वीजा लेके दूंगा, उसका पैसा नहीं खराब करूंगा। अगर मैं एज अ कंसल्टेंट मैं भी उसके पैसे और करियर खराब करने के पीछे होता तो मैं उसका कॉलेज चेंज कराता। मैंने उसका कॉलेज नहीं चेंज कराया। सबसे पहले मेरे लिए जरूरी था कि उसकी 5 रिफ्यूजल आई किस वजह से है। पहले उनको हमने स्क्रूटनाइज किया कि 5 रिफ्यूजल का कारण क्या है, क्यों बार बार रिफ्यूज कर रहा है। एक ही कंसल्टेंट ने 5 बार रिफ्यूज कराया? हाँ जी, एक ही कंसल्टेंट से 5 बार रिफ्यूज। जी जी जी। तो 5 तकरीबन 2-2.5 साल का समय लग गया वो। 2019 से बच्चा उनके पास है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब 5 रिफ्यूजल का कारण क्या है? कारण तो जानो पहले। बच्चे को आप फाइल पकड़ रहे हो, पहले कारण तो जानो। कारण नहीं जानना, सिर्फ और सिर्फ फाइल आ गई, फाइल को एम्बेसी में भेजना है कि वीजा तो एम्बेसी ने देना है। अरे कारण जानो। वीजा देती है एम्बेसी, एम्बेसी कहती है भैया पढ़ने वाले आओ मेरे पास। उस बच्चे के रिफ्यूजन का कारण जाना। उस बच्चे की एसओपी मैंने पढ़ी जी अपने आप। उस बच्चे की एसओपी में तो सिर्फ ये लिखा था कि जी वीजा दे दो। हम जैसे एम्बेसी ऑफिसर को हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भैया 4 बार रिफ्यूज हो गया, वीजा दे दो। जब मैंने 6th बार उसकी एसओपी, 6वीं बार जब हम उसकी एसओपी पे काम कर रहे थे, बच्चा हमारे पास हमारे कैबिन में बैठा था, वहीं बैठ के बच्चे की मैंने एसओपी लिखवाई है अपने सामने। हमें 8 से 9 घंटे लगे उसकी एसओपी तैयार करने में कि भाई हम एम्बेसी ऑफिसर कहें क्या कि हमें वीजा दे 5 रिफ्यूजल के बाद। 5 साल हो गए बच्चे को अपने वीजा के लिए मुशक्कत करते हुए। क्यों देगा एम्बेसी ऑफिसर वीजा? आज उस बच्चे के पास वीजा, सितंबर इनटेक में बच्चा फ्लाई कर रहा है। ऑलरेडी ये वाली सारी स्टोरी हम अपने सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि करण बंटा कंपटीशन के पास आ गए तो शायद वीजा मिल जाएगा। सिर्फ फाइल लगाने का तरीका है। एसओपी ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸਓਪੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 5 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? सर खुशी तो मेरे को उसकी भी मिलती है जिसका फ्रेश केस का वीजा आता है, क्योंकि नहीं स्टूडेंट ਨੂੰ मैं कहना भी ਉਹਨੂੰ बहुत ज्यादा खुशी होती है उसको। वो बच्चे एक्चुअली वो बच्चे को मैंने अपने ऑफिस बुलाया था। वो बच्चा टोटली शॉक था कि शायद वो बच्चा कहता है सर मैं आपको लिटरली ये बताऊंगा कि मैंने फाइल लगाई थी सिर्फ आपका एक टीवी शो देखकर। कहता बाकी मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा वीजा आ सकता है। कहता मैंने सिर्फ ये सोचा चलो इस कंसल्टेंट को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। कहता सिर्फ मैंने इस कारण आपके पास फाइल लगाई थी। और आप लिटरली वो बच्चा, मतलब जब मैंने उसे बताया कि भाई तेरी पीपीआर आ चुकी है, वो 5-10 मिनट तो कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ रोता रहा। मतलब वो रोता भी रहा और मेरे को खुशी भी हुई उसे देख के कि वो अपने एक्सप्रेशन दे रहा है। मतलब क्या उस बच्चे के मन में था वो कोई भी नहीं जान सकता। मतलब मेरे ख्याल से कोई कंसल्टेंट उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि किस कारण क्या कर रहा है वो बच्चा, क्या नहीं है। बट वो बच्चा जिस दिन वीजा लेने आया उस दिन उसने मेरे पास 1-1.5 घंटा बैठा। उस दिन पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उसके पेरेंट्स ने सारा कुछ बेच बाच के उसको भेजना चाहा, कैसे वो बच्चा एमबीए करने के बाद 2018 के बाद से अपनी फाइल लगवाना चाह रहा था, उसको वीजा नहीं मिल पा रहा था। तब जाकर वो बच्चे का मैंने समझा उस बच्चे के पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी बच्चे को बाहर भेजने के लिए। और आज वो बच्चा कनाडा जा रहा है। मैं खुश हूं कि ऐसे बच्चे की मैं मदद कर पाया, उसकी पढ़ाई में मदद कर पाया, उसका फ्यूचर बनाने में मैं मदद कर पाया। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੋਫਲ ਨੂੰ ਔਰ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ भी शायद 10 अगस्त तो बाद एक्सेप्टेशन यदि आनी है, हुण की एक्सेप्ट हो रही है। देखो पीटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको आज की ही पीपीआर दिखाना चाहता हूं। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, पीपीआर है ये दीजिए, पीपीआर है मनप्रीत की, ठीक है जी। तो आप ये पीपीआर देखिए, ठीक है जी। बच्चे का 3 दिन में पीटी के ऊपर वीजा आया है। अच्छा जी, सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर पीटी पे वीजा आया। बहुत जल्दी जो ये पीपीआर है, बहुत जल्दी जो इस बच्चे की वीडियो है मैं अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा, वो सभी इस बच्चे को सुन सकते हैं। 3 दिन में बच्चे का वीजा आया। पहले एक बार पीटी पे रिफ्यूज्ड है मैंने बच्चे का, अगेन कॉलेज चेंज नहीं, रिफ्यूज्ड बच्चा, कॉलेज नहीं चेंज किया मैंने इस बच्चे का। उसी को एजेंट के ऑफर लेटर के ऊपर केस लगाया, 2020 पास आउट, ठीक है जी। इस बच्चे का हमने वीजा लिया पीटी के ऊपर। पीटी के ऊपर मैंने सौरभ गर्ग का वीजा लिया। एक बार रिफ्यूज्ड बच्चा,
कोनास्टोगा कॉलेज मैंने तब भी कॉलेज चेंज नहीं किया, उसी एजेंट की ऑफर लेटर के ऊपर ही मैंने उसका वीजा लगाया। मेरा मकसद रिफ्यूज्ड बच्चे का कॉलेज चेंज करना बिल्कुल नहीं है। आप उसी कॉलेज का ऑफर लेटर लेकर आए और उसी कॉलेज के ऑफर लेटर के ऊपर अपना केस लगाएं, क्योंकि इससे आपका जो लाख 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना ना, सबसे पहले नुकसान वो बचता है। दूसरा नुकसान हरासमेंट, जब आप बार बार पैसा अपने घर वालों से मांगते हैं, अपने घर वालों को कहते हैं कि हमें और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं घर वाले ही नेगेटिव हो जाते हैं कि इतना पैसा लग रहा है और तेरे को वीजा नहीं मिल पा रहा। मेरा मकसद ये है कि बच्चे का पैसा खराब ना हो पर बच्चे को वीजा मिल जाए। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ? सर अभी जिसने पीटी की है, पीटी में उसके 54 अबव नंबर है, वो मेरे पास आ जाए कनाडा में अप्लाई करने के लिए। अगर किसी के एक में 5.5 बैंड है, वो 10 अगस्त तक का जरूर वेट करें, क्योंकि मैं भी तभी हर बच्चे को ये बोलूंगा कि वो एक में 5.5 बैंड पे अप्लाई करे जिस दिन मुझे कैनेडियन एम्बेसी अपडेट कर देगी कि यस एक में 5.5 बैंड पे अब उन्होंने एसडीएस लेना शुरू कर दिया है, और इतने स्कोरिंग के बाद कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि कॉलेज भी बहुत जरूरी है ना। एम्बेसी ने तो पहले भी बोल दिया था 6 इंच वाला बच्चा जो है वो एसडीएस में जाएगा, चाहे वो मास्टर डिग्री के लिए जा रहा हो चाहे वो बैचलर डिग्री के लिए जा रहा हो। बट कई कॉलेजेस ने अपनी रिक्वायरमेंट 6.5 की है अगर वो बच्चा पीजी डिप्लोमा या मास्टर के लिए जाना चाहता है। तो मुझे एक बार एम्बेसी और जब तक कॉलेजेस से क्लियर नहीं होता तब तक मैं इस बारे में बच्चे को गाइड नहीं करूंगा कि एक में 5.5 बैंड पे आप अपनी फाइल लगा लीजिए। फाइल अभी भी 6 इंच बैंड पे लगेगी, पीटी में 54 अबव है तो फाइल लगेगी, टॉफल में अभी अगर 84 और नॉट लेस देन 22 है तो टॉफल पे वीजा आएगा। आप ये मत कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने फाइल एम्बेसी में भेजनी है, एक में 5.5 पे या 54 से नीचे पीटी पे वीजा लगा ली, अप्लाई कर लीजिए। रिफ्यूजल देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक बार रिफ्यूजल आती है ना, सबसे ज्यादा नुकसान पेरेंट्स को तो होता ही होता है। जो बच्चे के ऊपर मेंटल स्ट्रेस होता है उससे बड़ा नुकसान जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪਰੂਵਲ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। देखो ये है जी लड़की, ये लड़की सहजप्रीत कौर है जी, इनका वीजा है हमारे पास, और बच्चे का एक बार यूएसए से रिफ्यूज्ड है। अच्छा जी। एक बार रिफ्यूजल के बाद हमने इस बच्चे का वीजा लिया है, यूएसए रिफ्यूजल के बाद। ठीक है, कई कंसल्टेंट कहते हैं आपका यूएस से रिफ्यूज हो चुका है, आपका कनाडा का वीजा नहीं आ सकता। ये बच्चा मेरे पास आया, मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कनाडा का वीजा लेके दे दिया। बच्चा किसी भी कंट्री से रिफ्यूज्ड है, बैन नहीं होना चाहिए, उस बच्चे का जरूर वीजा मिलेगा आपको। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਹੀ मान लो बोली जाता वीजे आऊगा, किस तरह चोण करे। देखो हर कंसल्टेंट ने अपना घर चलाना है, सब ने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हर बच्चे को बेचना है, ठीक है। बच्चे ने और पेरेंट्स को किस तरह से पता लगे भी ये बंदा सही बोल रहा है, वही मैं बस इसी चीज का आंसर मैं बहुत शॉर्ट में खत्म करूंगा। आपने कुछ नहीं करना, जिस भी ऑफिस में जाओ सिर्फ और सिर्फ ऑनर से मिल लो, आपको पता लग जाएगा वो कंपनी जेन्युइन है नहीं है। अगर आपको ऑनर नहीं मिलता ना उस कंपनी का, उस कंपनी से बिल्कुल अप्लाई मत करो। अप्लाई सिर्फ उस कंपनी से करो जहां पर ऑनर मिले, आपको फर्स्ट डे मिले, और आपका पर्सनल नंबर, आप पर्सनल नंबर ले सके ऑनर का, उस कंपनी से अप्लाई करो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ काउंसलर से मिले, ऑनर नहीं है जी, आज वो कनाडा चले गए, वो 10 दिन तक नहीं मिल सकते, उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हम ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट किसी को लेनी पड़ेगी? मुझे नहीं समझ आता इस बारे में कि हमारी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत क्या है। बच्चा आए, रिसेप्शन पे आए, सीधा बोले जी हमने करण सर से मिलना है। क्यों नहीं मिलेंगे? मेरा बिजनेस है, मैं बच्चे से क्यों नहीं मिलूंगा? ठीक है, इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं कौन सी कंसल्टेंसी जेन्युइन है और कौन सी कंसल्टेंसी जेन्युइन नहीं है। यस, कई बार होता है कि बिजी होते हैं, बट बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालना पड़ेगा। कमाना तो बच्चों से है ना, हमारी कमाई का साधन क्या है? बच्चे बाहर जाएंगे, ठीक है जी, तो उनसे तो मिलना जरूरी है। चाहे बच्चा एक बार मिले, पेरेंट्स 10 बार मिले, 50 बार मिले, मुझे बच्चे से मिलना जरूरी है। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈंट ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ जी, और ਕਿਹੜੀ प्रोफाइल सी है। ये भी कनाडा के वीजे हैं, ये मेरे पास आज ही रिसीव हुए हैं, जस्ट स्टैंप होकर आया। ये वीजा है जी मोहित राणा का। ये बच्चा नंगल से है, नंगल से है ये बच्चा मोहित राणा। 2 बार रिफ्यूज्ड है ये बच्चा। इस बच्चे के 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड,
+2 2021, अच्छा जी। बिजनेस में +2 किया और 85% नंबर थे बच्चे के, फिर भी 2 बार रिफ्यूज हो गया ये ਦੇਖੋ बच्चा। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਕਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। हाँ जी, वो ये है, ये ऑलरेडी ईशर जोत का पासपोर्ट है, हाँ जी। ठीक है जी। ये फ्रेश केस था ईशर जोत का। इनकी 2017 में हमारे पास जो है 2017 में इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। इनको हमने अल्गोमा यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेकर ਸਰ दिया है। 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ? इनके पास रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस था, अच्छा। ठीक है। तो हमने इनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेके दिया। इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में इंडिया से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा वर्क किया है कंस्ट्रक्शंस कंपनी में, तो इनको वीजा लेकर दिया है हमने। गैप की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अप टू 20 ईयर्स तक का गैप आपके पास अगर है, आप कनाडा में स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हो। वहां पर तेजस्विनी का वीजा है, 9 साल के गैप के साथ उन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था, ठीक है। 9 साल का गैप और 2 रिफ्यूजल के बाद हमने उनका वीजा लिया है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। हमारे पास इंदौर से क्लाइंट है इंद्रदीप कौर भाटिया, अच्छा जी। उनका हमने 16 साल के गैप के साथ वीजा लिया है। पर 16 साल के गैप में उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर किया है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आए और बोले जी हमारा तो 15 साल का गैप है, पर 15 साल के गैप में कुछ नहीं किया, वीजा लेके दे दो। नहीं, आपको गैप जस्टिफिकेशन देनी जरूरी है, तभी आप वीजा ले सकते हैं। आपके पास गैप जस्टिफिकेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो सकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनाडा का वीजा आपका वेट कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ आईएलटीएस में 6 ईच बैंड चाहिए। 40 से अबव आपकी एज होगी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, साथ जा सकते हैं कनाडा। कॉन्करेंट केस बोलते हैं इसको, कहते हैं स्पाउस वीजा, बच्चे साथ लेके जाने हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल मुझे देखनी पड़ेगी कि क्या प्रोफाइल है आपकी। आप, आपके हस्बैंड और आपके अप टू 3 चिल्ड्रन कनाडा में सेम डे फाइल लगाएंगे, सेम डे ही फ्लाइट में बैठेंगे। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? स्टूडेंट वीजा की बात कर रहा हूं मैं ये जी। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਸਕੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਤੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।